morning class 8. Today we are going to read chapter number 1 from geography, okay? And that is resources. So in this chapter we are going to discuss about the objects which are present around us. I mean to say about resources and the types of resources, utilization of resources and their conservation, okay? And we will also discuss about the sustainable development, okay? So here firstly I would like to ask the question to you that what is a resource? कोई resource क्या होता है? Suppose we are having this board in this classroom, okay? And I can write on this. मैं इस पर लिख सकता हूँ, ये मेरे काम में आ रहा है, ओके? टीचिंग प्रोसेस के लिए। तो ये बोर्ड क्या हो गया? It is a resource. This cell phone is a resource. This book is a resource. Okay? Everything in our environment which is having usability or utility, हर वो चीज हमारे एनवायरमेंट में जो हमारे लिए काम की है और जिसकी कोई ना कोई उपयोगिता या यूटिलिटी होती है, एंड हैविंग सम इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू में कंसीडर कर सकते हैं, धन की दृष्टि से जिसको मेजर कर सकते हैं कि ये 50 रुपीज की है या 200 की, या और भी दूसरे एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं, एंड विच कैन सेटिस्फाई टू नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स एंड जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है? रिसोर्सेज, इन हिंदी संसाधन, ओके? तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल दोस थिंग्स और सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट having utility or usability and can satisfy the needs of human beings are called resources. पर्यावरण के या वातावरण के वो सारे संसाधन, वो सारी चीजें या वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, जिनकी उपयोगिता होती है और जिनको आर्थिक दृष्टि से जो है मापा जा सकता है, ओके? ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सारे पदार्थों या वस्तुओं को या चीजों को इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे, या इन हिंदी संसाधन कहेंगे, ओके? हियर many kinds of resources, okay? Resources कई तरह के होते हैं. Basically we can classify these resources into 3 groups. First one is natural resource, second is man-made resource, and the third one is human resource, okay? So firstly we are describing the first type of resource, that is natural resource. Natural resource क्या होते हैं? All the objects or the things or the endowments or the gifts of nature, प्रकृति के वो सारे उपहार, वो सारी चीजें जो प्रकृति ने हमें दी है, लाइक फॉरेस्ट, वाटर, ओके, रेनफॉल, रिवर्स, फील्ड्स, ग्रासलैंड्स एंड सो ऑन, विच कैन बी यूज्ड बाय अस डायरेक्टली, जिनको हम सीधे सीधे यूज कर लेते हैं, ओके? वो सारे नेचुरल गिफ्ट्स या नेचर के वो सारे एंडोमेंट्स, प्रकृति के वो सारे उपहार, प्रकृति की वो सारी चीजें जो ह्यूमन बीइंग जो है डायरेक्टली यूज कर सकता है, or we can say all the objects or substances which are available for direct use of a human being are called resources. Sorry, natural resources. उनको हम क्या कहेंगे? Natural resources कहेंगे. Clear? Now the next is man-made resources. Here you are seeing this board, book, cell phone, your house, okay? And all those things which are made by or created by or transformed by human being to satisfy his needs, उसकी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मानव के द्वारा उसकी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बनाई गई सारी वस्तुएं जो किसी न किसी नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करके जो है वो अपनी नीड्स को या जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो है कोई चीज बनाता है, कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि उसके काम में आ सकता है, तो वो कैसा रिसोर्स है? That is known as man-made resource, okay? All the things or objects created by human being for his use or for satisfied his needs are called man-made resources, okay? Like कुछ भी बोल दीजिए आप, कोई कार है, बाइक है, रोड है, okay? रेलवे ट्रैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी इंसान ने बनाया, ह्यूमन बीइंग बनाया. And the next one is human resources. Human is also called a resource. Why? मानव को क्यों संसाधन कहा गया है? Human is called a resource because human is the only who can convert to all
So human is also called a resource because it is the human only who can convert to all these resources into useful manner for his use. क्योंकि ह्यूमन ही वो पर्सनालिटी है हमारे वर्ल्ड में जो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है और इन्हें मेन मेड रिसोर्स बना सकता है और मेन मेड रिसोर्स की यूजेबिलिटी को और जो है ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है। तो ह्यूमन के पास ही वो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, वो आइडियाज है जिसके थ्रू वो नेचुरल रिसोर्सेज और मेन मेड रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को मेन मेड रिसोर्सेज में और मेन मेड रिसोर्सेज की और भी यूजेबिलिटीज जो है जो पॉसिबल होगी उनको वो ढूंढ सकता है। तो ह्यूमन भी एक यहाँ पर जो है एज ए रिसोर्स जो है काम करता है। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज जापान के जो लोगों की बात करें तो वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो प्रोडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इनोवेटिव है, हमसे ज़्यादा जो है इन्वेंशन करने के मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के मामले में हम इंडियन से आगे एज कम्पेयर टू द इंडियन पीपल। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स कितना है? नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा है सर, अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़। बट अगर क्वालिटेटिव बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे भी नहीं है, यानी अगर हम रेशियो भी देखें तो 10 में से 2 लोग ही ऐसे होंगे, 10:2 का ही रेशियो बनेगा कि जो है 2 लोग ही ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में आगे होते हैं। क्लियर? तो या दूसरा कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए, जापान और आप लीजिए साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कोई कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, सूडान या सोमालिया कोई कंट्री, बैकवर्ड कंट्री, उनका एग्जांपल ले लीजिए तो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज सर जापान के कंपैरिजन में बहुत जो है बैकवर्ड, पुअर है, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड है। तो कहने का मतलब जिस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स जितना डेवलप होगा, इनोवेटिव होगा, स्किल्ड होगा, ओके, फील्ड विद आइडियाज होगा, वो जो है कंट्री उतना ही ज्यादा डेवलप करता है। सिंपली वी कैन से सो दीज वर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस developing the resources without damaging to the environment and compromising with the present generation. Okay, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है इन हिंदी कि आप जो है रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप करेंगे कि उनको डेवलप करने के दौरान जो है एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो और जो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही हो उसको भी अपनी जरूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, ठीक है, और जो आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी, उसके लिए भी ये रिसोर्सेज यूज करने के लिए अवेलेबल रहे। ओके, इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको प्रमोट करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये जो आइडियोलॉजी है ये प्रमोट करती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज को कंजर्व करके बचाकर रखना जरूरी है। ओके, यानी उनका यूटिलाइजेशन उस मैनर में जाकर हो, उस तरीके से हो ताकि वो आज भी हमारे लिए यूजेबल रहे अगर हम जितना हम करना चाहें, और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो। तो ये जो आइडियोलॉजी है इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? हियर वी आर गोइंग टू रीड दैट व्हाई डू वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? ओके, क्या रिसोर्सेज कम हैं या वो एग्जॉस्टिबल है ना, वो खत्म हो जाएंगे? लेट्स रीड। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एटसेट्रा। अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली यानी असमान रूप से जो है बटे हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। तो उसके रीज़न क्या है? रिलीफ यानी उस जगह की जो है लैंडफॉर्म कैसा है, वो माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है या प्लेचुरिज्म एंड सो ऑन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा, एक्सट्रीमली हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, ओके, या टोपोग्राफी कैसी है ना, लैंडफॉर्म जो है उसका टोपोग्राफी कैसा, एटसेट्रा। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इससे जो है अर्बनाइजेशन और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन रिसोर्सेज का कंजप्शन है, इनका जो उपभोग जो है वो बढ़ गया है।
मतलब रेपिडली बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिस हैज़, तो इससे क्या हुआ, इट लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उनका ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है, ओके, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, और डिप्लेशन यानी वो ख़त्म होने लगे हैं, या कुछ तो ख़त्म हो गए। टू प्रिवेंट दिस मिसयूज़ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन, टू कंजर्व ऑफ these resources इज़ नेसेसरी। ये सारे रिसोर्सेज के कंजर्व करने के लिए, इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, डिप्लेशन को रोकने के लिए, मिसयूज़ को रोकने के लिए रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब रिसोर्सेज को डेवलप तो करना चाहिए, उनकी क्वांटिटी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन उस लेवल पर बढ़ना चाहिए, उस लेवल पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो, और ना ही हमें आज की हमारी जो नीड्स है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर रीड करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से हो, या उनका डेवलपमेंट इस तरह से हो कि किसी के जीवन स्तर में सुधार आ जाए। कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्स, अर्थ के जो अलग अलग तरह के डाइवर्स यानी विभिन्न तरह के रिसोर्स है वो भी बचे रहें, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और जो प्राकृतिक संसाधन है वो ख़त्म नहीं हो जाए। यानी हम सपोज मान लीजिए कि हम फॉरेस्ट का यूज़ तो कर रहे हैं फर्नीचर वुड के लिए, इनके पेपर वुड के लिए, और भी बहुत सारे, पर इस तरीके से नहीं करें कि आज ही उन्हें आने वाले कुछ 100 to 100 ईयर्स में हम उन्हें ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके इंस्टेड ये करने की बजाय हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज के जो डिप्लेशन है उसको हमें कम करना है, कम से कम करना है, ताकि ये ज़्यादा देर तक चले। रेस्पेक्ट द एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जीवन के जितने भी रूप है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का जीव, उसके लिए हमें जो है रेस्पेक्ट जो है हमारे फीलिंग होनी चाहिए, और उसकी केयर करना भी हम सीखें। एडोप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए हमारे भीतर जो हमारे मन में एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए कि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसका, और उसे हमें प्रोटेक्शन भी देना है। So students, here we can say these are some principles, okay, of sustainable development theory which are most important or most usable for us, which can improve one's life, जो किसी के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है, and can protect to our environment in a real manner, और हमारे environment को सही तरीके से जो सुधार सकते, बचा सकते हैं, ऐसे ये प्रिंसिपल हैं, ओके, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये जो आइडियोलॉजी है। Here we are having an important fact, when a material can be called a resource, किसी मटेरियल को हम कब रिसोर्स कह सकते हैं। So for getting your answer, we can call to any material a resource when it can be changed into a thing of utility, जब इसे किसी उपयोगी चीज़ में, वस्तु में बदल दिया जाए, तब हम किसी मटेरियल यानी पदार्थ को जो है रिसोर्स यानी संसाधन बोल सकते हैं। When it possesses certain valuable property, जब इसमें कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ हो, यानी इसे हम वैल्यू में कंसिडर कर सके, तब हम किसी मटेरियल को रिसोर्स बोल सकते हैं। व्हेन इट इज़ अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जब ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, यानी जितना हमें चाहिए लगभग उसके आसपास, तब हम जो है उस मटेरियल को जो है रिसोर्स का टाइटल दे सकते हैं, ओके। नाउ वी आर रीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। So here the development and value of resources depends not only on the availability of natural resources. The development and value of resources depends not only on the availability of natural resources. यानी resources की जो development है वो खाली इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ओके, और उसकी किसी रिसोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, बट ऑल्सो ऑन द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना होगा, यानी किस लेवल तक उसके यूजेस बढ़ाए जा सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोगों की नीड्स कितनी है, ज़रूरत कैसी हैं और कितनी है, उनकी एस्पायरेशन, उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षी इच्छाएँ क्या क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर मटेरियल को लेकर वो क्या सोचते हैं, और उस रिसोर्स को लेकर एक्सेसिबिलिटी कैसी है, यानी वो कितनी कठिनाई से मिलेगा, वो इजीली अवेलेबल है या बहुत डिफ़िकल्टीज फेस आती है उस पार्टिकुलर रिसोर्स को जो है एक्सेस करने में। फिर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ रिसोर्स, किसी मटेरियल से कोई रिसोर्स बनाने में या किसी रिसोर्स को डेवलप करने में कितना पैसा खर्च होता है।
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है किसी चीज़ को लेकर, एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट, और रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए और उनके यूजेस बढ़ाने के लिए, ओके, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को जो है अच्छे से करने के लिए, जो उनको इनोवेटिव तरीके में कैसे चेंज किया जा सके, ये इन सब बातों के लिए जो है, इन सब बातों पर जो है किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर ह्यूमन बींग को बस इतना ही पता था कि पानी है, इसको पिया जा सकता है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एंड जो है इससे जो है फसलें उगाई जा सकती, पेड़ पौधे उग सकते, बस वो इतना ही जानते थे। लेकिन जब ह्यूमन बींग ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब अचीव कर लिया, तो उसने ये भी देखा कि वाटर जो है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, एंड सम मोर यूजेस आर देयर, और भी बहुत सारे यूजेस जो हैं वाटर के जो है ढूंढ लिए गए। तो यहाँ पर वाटर जो एक रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वैल्यू को देखते हुए, उसके यूजेस, लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले से ही बनाई, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो हमें कुछ और ऐसे चीज़ें ढूंढनी पड़ी जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो लोग फिर वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला इन्वेंशन हुआ। समझ में आ रहा है आपको? हम पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, तो मैंने जो एग्जांपल दिया है वो दिया है कि लोगों की एस्पायरेशंस और उनकी नीड्स, कि कोई रिसोर्स कितना डेवलप हो सकता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिसोर्स कितना अवेलेबल है, कितनी इजीली अवेलेबल है, और लोगों की नीड्स क्या हैं और उनकी एस्पायरेशंस क्या हैं, और वो पार्टिकुलर रिसोर्स उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, और उस रिसोर्स से कोई चीज़ बनाने की कोई उसको जो है कॉस्ट कितनी आई, खर्चा कितना आएगा, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे कंट्री में क्या क्या है, और जो है उस पार्टिकुलर रिसोर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर रिसोर्स। ओके, नाउ हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइवन इन द वर्ल्ड, ये असमान